morning, 12th standard, and today we come up with another one lecture of chapter 2. That solution is there, in which we are going to discuss today about the one more colligative property, that is elevation of boiling point. Fine, beta. Now this one, as we have already discussed about the one colligative property, that is relative lowering vapor pressure, which we have done in the previous one lecture, and if you haven't seen that, so please just go through that video. And today we started up with this one activity, with this one, another one colligative property. Now why we are going to study elevation in boiling point. Okay, so as all of you have seen that when we added a non-volatile solute in a solvent, or to make it a solution, then their boiling point increases. Like if you add a salt in water when we are boiling the egg, then at that time the water boiling temperature that gets a little bit elevated, and due to which the egg gets more time to boil in the water. So the boiling point of a solution that gets increased. Okay, when we add a non-volatile solute in it. So that is the elevation in boiling point. This is the application, and that's why it becomes necessary to understand the concept कि actual में होता क्या है. तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी. So start यहाँ से करते हैं. That all of you must know that liquid boils when the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, है ना. जब वेपर प्रेशर आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग. बट सिंस एज ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, so that means liquid also boils at different temperatures in different places. So that is the problem, and we are saying that boiling point of a liquid is fixed. It neither increases nor decreases. So to make it this one, what we have done, that we just consider the atmospheric pressure equals to 1 when we are taking 1 atmospheric pressure, when we are calculating or when we are taking out the boiling point of any liquid. ठीक है, तो हमने उसको क्या करा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफरेंट ना मान करके हमने कंसीडर किया कि वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, so that the liquid boiling point remains fixed or constant at everywhere. So the boiling point of a liquid is always fixed. Particular liquid is always fixed. It neither decreases nor increases. ठीक है, तो this is the first one point, and from there we can define that boiling point of a liquid is equal to the temperature at which its vapor pressure is equal to 1 atmosphere. ठीक है, कितने के बराबर हो जाए? 1 atmosphere. It becomes that. Now today we are going to study about the elevation in boiling point. ठीक है बच्चे, तो सपोज करते हैं कि when we have taken a non-volatile solute, ठीक है, whenever a non-volatile solute is added to added कह लो या dissolve कह लो, ठीक है, तो is dissolved in a liquid. आपने उसको किस में किया? Dissolve किया in a liquid. Then vapor pressure of the solution that gets lowered. क्या बोल रही हूँ? Vapor pressure of the solution gets lowered always whenever a non-volatile solute is added to the solution. ठीक है, or to the liquid we can say. So to make the vapor pressure equal to 1 atmosphere, ठीक है, क्योंकि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है सोल्यूशन में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? सोल्यूशन का लोअर हो गया, एंड बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू ऑलवेज द 1 atmosphere. So to make that equals to the 1 atmospheric pressure, we have to provide the heat, or we have to give the heat to the solution. हमें उसको क्या करना पड़ेगा? सोल्यूशन को हीट करना पड़ेगा. ठीक है, so for that the boiling point
so that the boiling point of solution that containing a non-volatile solution is always higher, क्या is always higher than that of the pure liquid. तो वो हमेशा pure liquid से boiling point solution का क्या होगा, हायर होगा. जैसे मैंने आपको बात बताई कि जब आप वो प्योर वाटर लो, उसमें एग बॉयल करो, तो वो आपका 100 डिग्री पे हो जाएगा. लेकिन अगर मैंने उसमें NaCl, एक नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, देयर इज अ एलिवेशन, एंड बिकॉज ऑफ विच आप उसका टेम्परेचर, मतलब उसे ज्यादा हीट प्रोवाइड हो रही है, लंबे टाइम तक हो रही है, तो आप उसमें कोई भी चीज अच्छे से कुक कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी द फिनोमिना और बेसिक एप्लीकेशन. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. लुक हेयर बेटा, सिंपली ये जो आपका मैंने कहा कि जो एलिवेशन आया, जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट टू द सॉल्यूशन, that increase of boiling point is known as elevation in boiling point. ठीक है. तो उसे हम क्या कहते हैं, elevation in boiling point. Now suppose there is a graph, we plotted a graph of a solvent and the solution, या हम कहें pure liquid and an after addition of impurity. ठीक है. So in it the vapor pressure and temperature, इन दोनों के बीच में हमने एक या ग्राफ प्लॉट किया जब solvent और solution का. then we come up to the knowledge that suppose this is a 1 atmospheric pressure, तो हमें अपना solvent और solution दोनों ही यहाँ पर तक लाना है. so this is A is the curve for the solvent, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के अगेंस्ट धीरे धीरे गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इक्वल्स टू एट दिस वन पॉइंट इक्वल टू सॉल्वेंट अटेन इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एंड दिस इज द टेम्परेचर T1 विच इज फॉर द सॉल्वेंट और विच वी कैन से फॉर द प्योर लिक्विड. किसके लिए है ये, प्योर लिक्विड के लिए है बेटा. ठीक है. एंड सिमिलरली व्हेन वी प्लॉट आफ्टर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ for again for the same liquid in which non-volatile solute is added. ठीक है. So to make that also equals to 1 atmospheric, this is the curve which we obtained after plotting या after noted down the different values of vapor pressure at different temperatures. So this is the curve for that. और ये किसका ग्राफ है आपका, this is the curve for the B1 पार्ट. ठीक है. तो ये B का ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे आया है और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे आया. सो इट मीन्स व्हेन वी जॉइन इट फ्रॉम द टेम्परेचर, सो T1 इज द टेम्परेचर फॉर द सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड वी कैन से, एंड T2 इज द टेम्परेचर फॉर द सोल्यूशन. ठीक है बेटा. ये किसके लिए हो गया आपका, T2 आपका क्या है, दैट इज द टेम्परेचर फॉर a solution. So here we can say, as you can see, there is a difference in temperature. ये difference आया. This temperature is delta T we can say, and this is a raise in temperature. As you can see here, that it will be always vapor. जो आपका वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, आप अगर यहाँ पर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर लिक्विड. तो T2 जो है वो हमेशा क्या रहेगा, हायर रहेगा. किससे, T1 से. वैल्यू बढ़ गई ना, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, T2 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, जो भी कहना चाहे. तो ये हमेशा ज्यादा होगा, ये कम होगा सोल्यूशन में. और इनका जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1. जितना इंक्रीज आया है वो डिफरेंस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और फ्रॉम देयर ऑल्सो वी कैन से दैट ए और बी जो थे, ए और बी, दीज आर द कर्व्स बेसिकली, एंड दीज कर्व्स आर वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व्स फॉर प्योर सॉल्वेंट, जो कि हम लिक्विड कह रहे हैं, एंड फॉर सोल्यूशन. सिंस वेपर प्रेशर ऑफ solution is always lower than the solvent, vapor pressure solution का solvent से क्या है, कम है, और boiling point ज्यादा है. ठीक है. vapor pressure of solution is lower than
that of the solvent. So why? Because curve B lies below the curve A, है ना. कर्व B देखिए ये इससे कम पे लाई कर रहा है, तो इट ऑब्वियसली वैल्यू कम है इसकी. सो कर्व B lies below the curve A, and that's why we can say that the boiling point of T2 or solution is greater than the boiling point of the pure liquid या solvent you can say. ठीक है. T1 ये pure one है, ये solution का ना. Elevation in boiling point we have already discussed about that कि delta T जो होता है, as well as we can also say that delta T is directly proportional to the molality. ठीक है बेटा, delta T is directly proportional to the molality, or we also can say that delta T is equals to Kb into m, where Kb is nothing but it is equals to molar elevation constant. ठीक है, क्या चीज होती है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं. केबी को इसको हम क्या कहते हैं? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं. किसको कहते हैं? केबी को. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड whose value is क्या हो जाएगी? Kb is equals to delta T upon m. Kb is equals to delta T upon m, where m is the molality, delta T is the elevation in boiling point, and m आपको मालूम है molality है. So delta T it means because it do not depend on the number of moles, है ना. ये नंबर ऑफ मोल्स पे मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है. इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स. इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसे हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. सो दैट्स व्हाई डेल्टा टी इज ऑल्सो अनदर वन colligative property, and where we can say molar elevation constant, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, that it is equals to the elevation in boiling point produced by 1 molar solution. आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, produced by 1 molar solution. Now all of you must know the molality formula. Molality is what? Molality is the number of moles upon mass of solvent in 1 kg. यही होता है. Number of moles of solute, that is equals to given mass, ये बेटा given mass upon molar mass. ठीक है. So this given mass, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे, given mass upon molar mass, that is your ऑफ सल्यूट. ये सल्यूट के होंगे, मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय, आपको मैंने क्या कहा? अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स, आई जस्ट कन्वर्टेड W इंटू 10⁻³ कर दीजिए, या इंटू 1000 कर दीजिए. ठीक है. सो W इज नथिंग बट इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट. क्या है? कैपिटल W इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल w इज द मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर ज्यादा वो नहीं करेंगे फोकस. सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा टी है. ठीक है बच्चे, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी. सो हम कहते हैं दैट it is the what? It is your a colligative property. तो हमेशा याद रखिएगा that boiling point of a liquid is not a colligative property. Elevation in a boiling point of a liquid is a colligative property. दोबारा बोलूं, that boiling point of a liquid is not a colligative property, but elevation in a boiling point is a colligative property. Fine बच्चे? So beta, in this we are going to discuss about that
न्यूमेरिकल ऑन इट, ठीक है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, जैसे कि देखिए एन एक्वस सोल्यूशन विच द न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एन एक्वस सोल्यूशन containing 12 gram of glucose in 100 gram water was found to boil at 100.34 degrees Celsius. Calculate molar elevation constant for water, जहाँ पर कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें कितना दिया हुआ है 180। ना हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, जस्ट हैव अ लुक हियर, ठीक है। जैसे सपोज मैंने कहा सबसे पहले वट एवर इज गिवन टू यू एंड वट यू हैव टू कैलकुलेट, जस्ट राइट डाउन दैट, ठीक है। सो इसमें क्या है बच्चे, देखिए गिवन मास ऑफ सल्यूट दैट इज इक्वल्स टू 12 ग्राम, ये दिया हुआ है। गिवन मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल्स टू 12 ग्राम, ठीक है। दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट है। सो इट मीन्स इट इज द कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 100 ग्राम हेयर। डेल्टा टी, जो अब एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर वॉज फाउंड टू बॉयल एट, सोल्यूशन जो है वो बॉयल कर रहा है आपका 100.34 डिग्री सेल्सियस पे। सो इट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, अब आप लोगों को मालूम ही है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो प्योर लिक्विड का है, तो डेल्टा टी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेयर T1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू TB माइनस TA कर लीजिए या T2 माइनस T1 कर लीजिए, ठीक है। 2 इज द टेम्परेचर फॉर सोल्यूशन एंड 1 इज द टेम्परेचर फॉर प्योर लिक्विड। सो वी नो दैट T1 इज इक्वल्स टू, दैट इज कितना है आपका, दिस इज जस्ट 1 मिनट, ठीक है बेटा। तो ये देखिए जैसे कि मैंने कहा T1 प्योर लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और तो बच्चे ये कितना हुआ हमारा, दैट एज यू कैन सी हियर दैट डेल्टा टी हमारा 0.34 डिग्री सेल्सियस आ गया। आपको ये कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना है कि आपको सोल्यूशन का दे रहा है या सॉल्वेंट का दे रहा है या जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो गिवन है, ठीक है। सो उसने ये कहा था कि सोल्यूशन जो बॉइल्ड होता है वो 100.34 डिग्री सेल्सियस है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट एज T2। ये हमारा T2 चला गया। T1 देने की जरूरत नहीं है, वी ऑल ऑफ अस वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो मैंने यहाँ पे 100.34 माइनस 100 किया, इट डेल्टा टी वैल्यू कम्स आउट 0.34 डिग्री सेल्सियस। And delta T, according to the formula, we know that it is equals to Kb into W into 1000 upon W into M. Now put the values here. W हमारा 12 है, into हमारे पास 1000, मेरे को ग्राम में करना है, किलोग्राम को इसलिए मैंने किया because it is the values which generally given in the numerical, that is in grams. तो into 1000 upon W हमारे पास 100 है, into मोलर मास, मोलर मास भी मुझे दिया हुआ है ग्लूकोज का, अदरवाइज इफ इट इज गिवन टू यू देन यू हैव टू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ बेटा यहाँ से अपना केबी कैलकुलेट कीजिए, सिंपली 0.34 इंटू 100 इंटू 180 अपॉन 12 इंटू 1000। सो इट नियर अबाउट, आफ्टर कैलकुलेशन इसको अगर आप करते हैं सो इट कम्स आउट 0.51 ना 0.51, ठीक है, ये आया आपका, एंड दैट कम्स आउट केल्विन केजी पर मोल, ठीक है जी। दिस कम्स आउट अ वैल्यू ऑफ दिस मच, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर था? Okay, so in this way we are supposed to do the numericals which are based on the elevation in boiling point. I will give you a few numericals in assignment with the solved solutions also of that later on. तो सबसे पहले आप इन numericals को खुद करने की कोशिश कीजिएगा, otherwise मैं उनके solutions आपके साथ शेयर करूंगी तो उनको देखिएगा, ठीक है। Till that time, thank you. Watch the video carefully and then go to the from your NCERT book also, as I am always used to say that you have to read the topic from your NCERT book also. तो आज आपको क्या करना है, because tomorrow is Sunday, so आज आप लोग साथ में क्या क्या करेंगे, एक elevation in boiling point and relative lowering vapor pressure and the numericals based on these two colligative properties. Thank you to everyone.